Uh, okay, let's start our lesson today. So, उबुम कौन सा दिया था मैंने? उबंग फोर था सर। यस सर। उबुम फिया। अच्छा, उबुम फिया। Oh, Übung 2, Übung 3 हमने किया था, Übung 4. Okay. Schreiben Sie einen Dialog, bilden Sie Sätze und achten Sie auf den Satzbau, die Verben und Klauseln. अच्छा. Wie du seit, wie du zur Arbeit fahren? Wie fährst du zur Arbeit? नगमा, मैं आपसे शुरू करता हूँ. Ich mit Auto fahren, तो क्या होगा? सर इसका इस फारे में दिन और तो Gut. Ich, एक मिनट. Ich, ich fahre mit dem, मिड दिन ऑटो ich ऑटो fahre mit dem Auto und du. अच्छा ये जुबैर क्या क्वेश्चन है कुछ? नहीं सर, बिना उससे आंसर बताना। Ich fahre mit dem Auto, हाँ मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा. अच्छी. मोहसिन अली. Ich mit ich und du. अच्छा उसने कहा ich fahre mit dem Auto und du and you, तो वो कहता है ich mit Zug fahren. तो मोहसिन आप बताइए क्या होगा ये ich mit Zug fahren दाटिव में. सर इसका होगा इश फारे हम्म. मेट देम सु। हाँ ich fahre mit dem इश Zug. फारे mit dem Zug. सु। अच्छा गुड. अच्छा इसके बाद मोहम्मद जुबैर. Zug fahren teuer sein. सुख फारन इज टॉयर। हाँ Zug fahren ist teuer. Zug fahren ist teuer. Teuer. Ist expensive. Ist teuer. अच्छा इसके बाद कबीर. Auto fahren auch teuer sein. Sir, Autofahren ist auch teuer. Auto fahren ist auch teuer. Äh, die, auch teuer. अच्छा वो कहता है wie lange stehen du jeden Tag im Stau? हवा. आप इस पे बनाएं. हवा. आप आप नहीं तो हफ्सा. बीबी हफ्सा. जी सर। आप बनाएं इस पे wie lange stehen du jeden Tag im Stau? तो ये क्या बनेगा सेंटेंस? वी लांगे स्टेस्ट डू या स्टेस्ट हाँ stehst du. यार्डन टाग इम स्टाडू स्टाटू नहीं Stau Stau. Jeden स्टाव Tag. सॉरी स्टाव Jeden Tag. Jeden Tag im Stau. Im इम Stau. Wie lange stehst du jeden Tag im Stau? अच्छा इसके बाद बुहैर अहमद. Ich Montag und Freitag circa Minuten im Stau stehen. तो क्या होगा ich? बुहैर. Ich, ich stehe Ich, ich, montags und ich stehe. montags und Freitag sie है। Montags, montags und freitags, Hello, freitags circa 30 Minuten. hello, जी जी. circa 30 Minuten im Stau. Newton im and Stau. star im Stau. बस कंप्लीट हो गया. ठीक है. अच्छा अच्छा. कॉमा. इसके बाद समीर. समीर खतीजा है समीर. इसके बाद क्या होगा Mittwoch ist nur 20 Minuten. क्या होगा?
समीर नहीं है तो हुमा, हुमा हमीद, मिठवोख, मिठवोख, जमील अहमद आप बताएं। Mittwoch fahre ich nur Mittwoch ich nur 20 Minuten im Büro fahren। 20। अच्छा, आप लिख रहे हैं सर, मैं साथ साथ बताऊं या एक ही दफा बता दूं? बता दे मिठवोख। Mittwoch fahre ich nur 20 Minuten ins Büro. हाँ, Mittwoch fahre ich nur Nur 20 20 Minuten Minuten हाँ ins Büro. ins Büro। अच्छा, ये क्वेश्चन उसामा आपने हाथ उठाया, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर, ये जवाब दे रहा था सर। अच्छा, इन बिरो, ins Büro, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा इसका सर, wie lange fährst du zur Arbeit? क्वेश्चन बनेगा wie lange fährst du zur Arbeit? Fährst du zur Arbeit? Wie lange fährst du Zur Arbeit. zur Arbeit? अच्छा, चले उसामा आप इसका बता दें। 50 Minuten तो क्या होगा? सर ये होगा 50 Minuten, aber ich नहीं नहीं äh, नहीं, अच्छा 50, ठीक है ठीक है। हाँ, ich fahre 50 Minuten या 50 Minuten, aber क्या होगा? aber ich kann im Zug arbeiten. हाँ गुड, aber Ich, ich kann, ich kann im Zug arbeiten. kann ich im Zug arbeiten, aber ich kann im Zug arbeiten, aber ich kann im Zug arbeiten, गुड। अच्छा, इसके बाद हवा, आप बता सकती है warum du nicht mit Zug fahren? मेरे ख्याल में आज कोई प्रॉब्लम होगा। क्या नाम है इसका? रेहान दाद, रेहान दाद आप बता सकते हैं warum du nicht mit Zug fahren? मेमुना, मेमुना आप बता सकती हैं? इसके साथ भी शायद प्रॉब्लम है माइक का। अच्छा, माइक इशू, ठीक है, मसला नहीं है। याहिया, Yes, Riska, warum du nicht mit Zug fahren? warum du nicht mit Zug fahren? Warum hast du, nee, warum fährst du, Warum fährst du? fährst du Warum fährst du? nicht mit dem Zug? Warum fährst du nicht mit dem Zug? हाँ, Dem होगा ना सर? हाँ mit dem होगा, mit dem Zug, क्योंकि der Zug होता है। Warum fährst du nicht mit dem Zug? गुड। अच्छा, इसके बाद मैं पूछ रहा हूँ अ, सर 10 और दिया में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि दोनों देम होगा ना। नहीं, वो तो आपको पता होगा, सूग है तो दिया सूग है तो देम होगा, अगर फागाड़ है तो 10 फागाड़ है तो देम होगा। डिफरेंशिएट तो आप खुद करेंगे ना कि ये चीज है, इसका आर्टिकल ये है। अगर 10 है तो वो देम हो जाएगा, अगर दिया है तो तब भी वो देम हो जाएगा। ओके। हम्म। अच्छा, इसके बाद मैं पूछ रहा हूँ हफ्सा आपसे। अ, अ, हफ्सा आप बताए, दी सूगे ऑफ्ट verspätung haben? Die Züge haben oft Verspätung. Die Züge haben oft Verspätung, Vers Verspätung. Verspätung। Die Züge haben oft Verspätung। अच्छा, इसके बाद जमील अहमद, Ich liebe im Auto sitzen und Radio hören। Ich sitze lieber im Auto und höre Radio. ओके, Ich sitze, Liebe, हाँ ठीक है, हाँ, Ich sitze lieber im Auto und höre höre Radio। Radio. हाँ, ये Ich sitze lieber im Auto und
होरे उन्होरे radio, ठीक है। Ich sitze lieber im Auto und höre Radio। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है और तो और दिया था मैंने, नहीं दिया था मैंने नहीं खाली, सर, बस नहीं यही था। बस सिर्फ यही था। सिर्फ यही था। अच्छा ठीक है। अ, इसके बाद हम आते हैं, ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा ना इसको। अच्छा। अच्छा, एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, Jahreszeiten im Europa। ईयर ईयर टाइम्स, जो सीजन्स होते हैं, जो मंथ्स होते हैं, मैं इसको रन करता हूँ या आप ऑडियो सुन ले, फिर इसका देखते हैं कि क्या ये कह रहे हैं, ठीक है। अ, तो ये है Jahreszeiten 10। Kapitel 7, Aufgabe 14a. Jahreszeiten in Europa. Die Jahreszeiten. Der Winter, der Frühling, der Sommer, der Herbst, Die Monate. der Januar, der Februar, der März, der April, der Mai, der Juni, der Juli, der August, der September, der Oktober, der November, der Dezember, Das Wetter. die Kälte, die Wärme, die Hitze, die Sonne, der Wind, der Nebel, der Regen, der Schnee। रोशनी। अच्छा, इसमें पहले थे दिया यागसाइटन, जो ईयर सीजन्स होते हैं, टाइम्स, ठीक है। 10 विंटर, विंटर तो आपको दिया विंटर, ये अक्सर देखे आर्टिकल दिया लगा होता है इनके साथ, दिया दिया करके। दिया विंटर, विंटर। दिया फ्रूलिंग, स्प्रिंग। दिया जोमा, समर। दिया हेrbst, क्या कहते हैं इसको, फॉल, ठीक है। ये 4 सीजन्स है, विंटर, फ्रूलिंग, जोमर, हेrbst। ऑटम में सर। हाँ ऑटम, हाँ ऑटम, हाँ एब्स्ट। अच्छा, दी मोनाटे, जो मंथ्स होते हैं, क्या कहते हैं, दिया जनवा, दिया फेब्रुआ, दिया मैर्स, दिया अप्रैल, दिया दिया मई, दिया जूनी, दिया जूली, दिया अगस्त, अगस्त, दिया अगस्त, दिया सितंबर, दिया अक्टूबर, दिया नवंबर, दिया दिसंबर। ठीक है। ये आप एक दो दफा चलाएंगे, इसको गौर से सुने तो थोड़ा खुद भी पढ़े, तो आपकी जबान पे बैठ जाएगा ये, ठीक है। दी कैल्टे, 10 बेटा वेदर्स जो होते हैं, 10 दी कैल्टे, कैल्टे, दी कैल्टे कोल्ड जिसको बोलते हैं, दी वेरमे वार्म, दी हिट से हॉट, जो ज्यादा वार्म से ज्यादा जो टेम्परेचर होता है, यानी तकरीबन 35-40 जो होता है, उसको हिट से बोलते हैं, दी हिट से। दी जोने, सन। दिया विंड, विंड इंग्लिश में भी विंड ही बोलते हैं। दिया नेबल, नेबल फॉग को बोलते हैं, फॉग। दिया नेबल। दिया रेगन, हाँ रेगन तो आपको पता है, रेन। दिया स्ने, स्ने, स्ने उसको बोलते हैं, स्नो को। स्नो, हाँ स्नो। दिया स्ने, दिया स्ने, ठीक है। अच्छा। सर ये हॉट को हाइस भी बोलते हैं ना, हाइस। हाइस, हाँ हॉट को हाइस भी बोलते हैं। हिट से इसको बोलते हैं, हीट को बोलते हैं, हीट। हिट से हीट, यानी वो जो टेम्परेचर आपका जो बहुत ज्यादा हाइस हो जाता है ना, हिट से, हीट, ठीक है। जो मीनिंग है वो हीट ही है।
अच्छा, वलीद नहीं है। कबीर, आप एक दफा इसको पढ़ ले, ये मंथ्स को, ये सीजन और मंथ्स को, कि किस तरह प्रोनाउंस करते हैं। Also, der Winter, हम्म der Frühling, हम्म der Sommer, हम्म der Herbst, हब्स नहीं, हेrbst, हेrbst, Herbst, हेrbst। die Monate, हम्म der Januar, हम्म der Februar, हम्म der März, मैर्स, हाँ, दिया मैर्स, दिया die- मैर्स। der März, हम्म der April, der अप्रैल, Mai, अप्रैल, अप्रैल, April, हाँ, der Mai, दिया मई। der Juni, हम्म der Juli, हम्म der August, हम्म der September, सितंबर, बा, der सितंबर, और जो है वो, September, हाँ। der Oktober, हम्म der November, हम्म der Dezember, बर नहीं, बा, दिया दिसंबर। हाँ December, हाँ, ये जो आर एंड में आता है ना, ये वो आपने पीछे भी पढ़ा था, उसका तकरीबन ये साइलेंट हो जाता है। दिया सितंबर, दिया अक्टूबर, दिया नवंबर, दिया दिसंबर। ठीक है, इस तरह से। गुड, सही आपने प्रोनाउंस किया। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इस पे टॉपिक पे, unterwegs, welche Nomen aus Aufgabe A, अच्छा, welche Nomen, ये जो nouns है, welche Nomen aus Ausgabe A passen zu Bilder, ordnen Sie zu, कि इसमें से जो मंथ्स है या यागे साइटन, ये जो सीजन है या जो ये वेटर है, ये कौन सा पास्ट करता है, यानी कौन सा मैच करता है इन इन फोटोज से। ऑर्डिनन जी सू, आप इसको ऑर्डर करें। आर्बाइटन जी गुरुवा फ्रगलाइशन जी, अच्छा है, ठीक है। अब जैसे ये है, यागा साइट क्या होगा, सीजन, दिया विंटर। मोनाट है, दिया दिसंबर, और क्या होगा, दिया Der दिया November, जनवरी, Januar, दिया जनवरी, यनवा, और दिया Januar, der Februar, दिया Februar, फेबुआ, फरवरी, Februar, दिया फेबुआ, दिया फेबुआ। अच्छा, वेटर है, देशने, दी die Kälte, die Kälte, Kälte, केल्टे, हाँ, दी केल्टे, ये होगा दी केल्टे। एस नाइट का मतलब है इट स्नोस। एसिस्ट Snows, काल्ट, एसिस्ट काल्ट, इट इज कोल्ड। ठीक है। cold, अच्छा, ये आपके पास अभी वो है, यागे साइटन क्या होगा, der Frühling, दिया फ्रूलिंग, full, स्प्रिंग, वो नजर आ रहा है कि फूल मूल निकल आए हैं दरख्तों पे, तो ये होगा दिया फ्रूलिंग, दिया फ्रूलिंग। मोनाट कौन सा होगा, थीन, der ये Sommer, März, दिया अगस्त होगा। मैर्स, Yes. der April, दिया अप्रैल, der Mai, हाँ, दिया अप्रैल, दिया मई, दिया मई। ठीक है। अच्छा, वेटर होगा, die Wärme, दिवेर में, दिवेर में थोड़ा वार्म होगा, हाँ, दिवेर में। der Regen, हाँ, बारिश भी अक्सर होती है इस सीजन में, दिया रेगन, दिया रेगन। अच्छा, क्योंकि यहां से नजर आ रहा है ना, एस इस्ट वार्म, एस ist रेगनेंट, बारिश होती है। ठीक है, दिया मेर्स, दिया अप्रैल, दिया मई। अच्छा, वहां पे जो अप्रैल का मौसम होता है अभी जो आने वाला है, ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है अक्सर ऐसे। अभी थोड़ी सी सूरज निकली है, फिर बारिश शुरू होगी, तो वो लोग एक एक सेइंग है उनका, वो कहते हैं अप्रैल अप्रैल या macht was er will, मतलब अप्रैल अप्रैल या macht ही डूस, der Mo- या macht was er will, और जो ये भी चाहता है, जो ये मतलब जो इसका मन करता है वही करता है, या macht was सर er ये will। लास्ट वाला फोलिंग नहीं है, देखे इसमें क्या कहते हैं, पूल इसमें लास्ट वाले में भी है। लास्ट वाले में हाँ नहीं, ये नहीं फोलिंग। नहीं, लास्ट वाला नहीं है, लास्ट वाला तस्वीर थोड़ा सा वो है, ये नहीं, वो नहीं है। देखिए यहाँ पे पट्टी, इसे पुल निकले हुए, वहां तो पुल नहीं है, वो मतलब इसे उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है दरख्त। यस। हाँ। अच्छा, अच्छा, ये थर्ड वन, यागा साइटन क्या होगा ये, ये जोमर है। दिया जोमर। दिया जोमर होगा, ये Yes, दिया Roma. जोमर। यहाँ से लग रहा है कि वो बीच में
बैठी हुई, अच्छा। मोनाट्स कौन कौन से होंगे? यूनी दिया, यूनी, दिया, यूलाई, यूली है। यूली, जुलाई नहीं, दिया यूली, दिया यूली, दिया यूली, और दी अगस्त। दिया अगस्त, अगस्त, दिया अगस्त, अच्छा। दी जोने शाइंट एसिस्ट आइस, तो क्या होगा? ये सर वो Die Sonne. दी wind or दी जोने und Die Hitze. इट से, हाँ इट से, the दी इट से, दी हिट से, क्योंकि एस दी जोना शाइंट एसिस्ट हाइस, गर्म है और सूरज चमक रहा है, शाइंट, दी जोना शाइंट, सूरज निकला या सूरज चमक रहा है, ठीक है, शाइंट। अच्छा, ये लास्ट वन यागा साइट होगा, Der दिया Herbst. दिया Herbst. हेrbst, हेrbst, दिया Herbst. हेrbst, ऑटम। मोनाटे कौन कौन से होंगे? Der September. दिया सितंबर, Der Oktober. दिया अक्टूबर, दिया अक्टूबर, अक्टूबर, दिया Der, अक्टूबर, दिया नवंबर। दिया नवंबर, हाँ दिया नवंबर, दिया नवंबर, ठीक है, दिया नवंबर। अच्छा, एसिस्ट नेबलिक, एसिस्ट विंडिक, विंडिश या विंडिक, विंडिक मतलब हवा चलती है बहुत, एसिस्ट नेबलिक, फॉग, फॉगी है, der Nebel. हाँ। दिया नेबल है ना, दिया दिया नेबल, फॉग, Der और Wind. दिया विंड, विंड, हवा चलती, दिया विंड, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं कि berichten Sie, welche Monat ist Ihr Lieblingsmonat? Welche Monat mögen Sie nicht so gern? Wählen Sie zwei Monate aus, berichten Sie das Wetter in Ihrem Heimatland. Was machen Sie in diesen Monaten? अच्छा, ये कहते हैं कि आप ऐसे दो ऐसे मंथ्स आप चूज करें, उसमें बताए इनमें से कि मतलब ये मंथ आपके कंट्री में काल्ट है या जोनिक है, बारिश होती है, विंडिक है, बर्फ पड़ती है, schneit, die Temperaturen liegen bei 20 Grad, इस तरह से। सर फर्स्ट वाला ये है कि हम लिबलिंग्स मोनाट कौन से मंथ हमें पसंद है, फेवरेट मंथ। welcher Monat ist Ihr Lieblingsmonat? हाँ, welche Monat mögen Sie nicht? कौन से पसंद और कौन से नहीं कौन से पसंद, ये नहीं है, हाँ। बताना है। एक, हाँ, एक मंथ आपने वो लेना है कि ये मंथ मुझे पसंद है, एक मुझे पसंद नहीं है। अ, कोई कोई इस पे बोल, बनाया था वो पढ़ लूँ पढ़ ले हम। जिसे Mein Lieblingsmonat ist der April. हम्म, Ich mag den Juli nicht so gern. हम्म, Ich wähle April und Mai aus. aus क्या, इश, Ich wähle April und Mai aus. वेले aus क्या मतलब हो गया इधर? सर ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है उसने कहा चूज जो है ना 2 months मतलब अच्छा, हमारे अच्छा, ich wähle, I choose, हाँ, auswählen, okay। सर Das Wetter ist warm und regnerisch in diesen Monaten in हम्म, meinem Heimatland. हम्म, In diesen Monaten gehe ich oft schwimmen. अच्छा, ऑप्शन, ठीक है सर। सही है, गुड, सही है। कोई और? मैं बनाऊं सर। जी। Mein Lieblingsmonat ist die April, weil das Wetter angenehm होगा ना सर, अनगिनेम, अनगिन, angenehm हाँ, ist und die Blumen blühen, क्योंकि सर वो फूल खिलते हैं। हाँ, ब्लूमन, ब्लूमन, Ich mag den August nicht so gern, I don't like August, weil es oft schwül ist, schwül humidity सर। ह्यूमिडिटी जो है, वो sultry सर। अच्छा, यहाँ पे है वो वर्ड,
नो, यहाँ पे नहीं है सर। अच्छा, पिरामिड, पिरामिड, अच्छा। हम्म। और तो नहीं है कुछ। नेक्स्ट का सर। अच्छा, आपने 2 मिनट्स बढ़ा दिए अपने। आप अगस्त लाइक नहीं करते और अप्रैल लाइक करते। यस सर। ठीक है। कोई और वॉलंटियर अगर बताना चाहे कि ये मंथ मुझे पसंद है, ये नहीं है। हम्म। जैसे यहाँ पे ये इसने बताया ना, इम Januar ist in Deutschland kalt। ये जो हमारा कोयटा है ना, ये बिल्कुल डॉइचलैंड का वेटर जो है बिल्कुल कोयटा की तरह होता है। ये मैंने एक दफा अपने प्रोफेसर से बात की थी, उसने पूछा था कि आपका वेदर कैसे होता है। मैंने कहा बिल्कुल कोयटा की तरह है हमारा डॉइचलैंड में। तो उसने देखा था उस मैप पे, वो इक्वेटर पे तकरीबन एक लाइन पे लाई करता है ये हमारा जो रीजन है। ये जो कोयटा और ये अफगानिस्तान का, जो ये ईरान का ये जो एरिया है, वो इक्वेटर पे तकरीबन ऊपर नीचे एक जैसे, तो इसलिए वेटर तकरीबन एक जैसा है कि यहाँ पे भी ये 3 महीनों में जो टेम्परेचर कोल्ड, उधर थोड़ी ज्यादा सर्दी होती है लेकिन मोर और लेस टेम्परेचर ऐसे ही होता है। अच्छा, तो हम इस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं जैसे डॉइचलैंड के बारे में, वैसे ही तकरीबन यहाँ पे ऐसे ही कर सकते हैं। इम Januar ist es in Deutschland kalt und es schneit। क्या है कि जनवरी में डॉइचलैंड में कोल्ड होती है और बर्फ पड़ती है। Ich mag den Schnee, I like क्या है स्नो। Ich fahre im Januar oft in den Urlaub। Ich fahre, I go on vacation in Januar। Dort fahre ich Ski। स्कीइंग जिसको नहीं बोलते स्की, शी बोलते हैं ये लोग, शी। डॉट फारे इज शी, वो स्कीइंग करता है वहां पे। Die Tage sind im Januar sehr kurz। शॉर्ट होते हैं ना, यहाँ पे भी वैसे ही होते हैं। Die Tage sind im Januar sehr kurz, बहुत शॉर्ट होते हैं जो डेज होते हैं जनवरी में। Das mag ich nicht so, this I do not like। Mein Lieblingsmonat ist der Mai। Im Mai, लेट से आप कह सकते हो कि im Mai इस es ist warm। im Mai es ist warm, वार्म होता है। वैसे वो पसंद करते हैं वार्म। और Regnet often। die Temperaturen मई हाँ, regnet often। अच्छा, अ, ये माघ में नहीं आएगा। रेगन वो बिल्कुल पसंद नहीं करते बारिश को। उल्टा है वहां पे, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा होती है, वो मार्क नहीं करते। अगर कहीं पे वो हो कि बारिश हो रही है, ये वो तो बोलते हैं बड़ा बड़ा खराब मौसम है। अच्छा मौसम किसको समझते हैं, जब सूरज निकला हो तो ये कहते हैं बड़ा अच्छा मौसम है, क्योंकि सूरज बहुत कम ही निकलते हैं ना वहाँ पे, ज्यादातर बारिश ही होती है। अ, सर जैसे सेल्सियस को ये गिगाट कहते हैं ग्राट, जर्मन्स। हाँ, स्वांजिश ग्राट, हाँ, डिग्री, 20 डिग्री, ओह, डिग्री को ग्राड बोलते हैं, हाँ। जैसे जब मैं लाहौर में स्प्राख कोर्स, ये जो डॉइच कोर्स कर रहा था, तो इसी तरह से मैं एक हाउस ऑफ गाबा एक टास्क दिया था कि डिफरेंट टाइप्स के मौसम थे कि आप चूज करें कि कौन सा मतलब अच्छा मौसम है, कौन सा बुरा है। तो इसमें एक सिचुएशन थी कि इसमें बारिश हो रही है और क्लाउडी है और ये है, और एक है कि बड़ा सनी है और ये। मैंने वो क्लाउडी वाला और बारिश वाला मैंने कहा था कि ये अच्छा वेदर है, और जो सनी वाला है मैंने कहा था ये अच्छा नहीं है। तो उसने मुझे 0 दे दिया। मैंने कहा क्यों, पूछा क्यों, तो उसने कहा कि ये तो खराब मौसम है। मैंने कहा मेरे हिसाब से तो अच्छा है। फिर उसने कहा नहीं, आपने वहाँ के हिसाब से बताना है। अ, उस वक्त तो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन वहाँ पे रहने के बाद वाकई में ऐसे ही होता है कि जो बारिश नेबल और ये पसंद नहीं करते, बहुत ज्यादा बारिश होती, और ये जो सनी है पसंद करते हैं। तो आप ये बड़ा अच्छा उन्होंने वो दिया हुआ है, इसको देखते हुए आप राइट कर सकते हैं सर कि उधर कीचड़ हो जाती है, क्या हो जाए? क्या है। उधर क्यों बारिश पसंद नहीं करते? बारिश ये इसलिए पसंद नहीं करते कि आप ना अब बाहर जा रहे हैं तो आपको हमेशा छतरी लेनी पड़ेगी। बारिश मतलब आप हमेशा बारिश हो रही हो तो आप भी नहीं पसंद करेंगे कि गीला हो जाता है बंदा, यानी छतरी है आपके पास और आप सही घूम नहीं सकते, आप सही वो नहीं कर सकते। आप अब जैसे ये ये ऐसी यहाँ पे बीच में लेटी हुई है, या कोई पार्क में आप सही घूम नहीं सकते, यानी बारिश हो रही है, डिस्टरबेंस हो रही है, नहीं नहीं होती डिस्टरबेंस।
तो इसकी सर असल में उधर बार बार होती है, इस वजह से वो लोग ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। हमारे जैसे कम कम होती है तो हाँ हमें अच्छा लगता है। हाँ हाँ, यही वजह है कि कम होती है तो अच्छा लगता है। अब यहाँ पे हमेशा सूरज निकला होता है, तो हम थोड़े से वो हो जाते हैं कि गर्मी है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि कभी कभार ही निकलता है, बहुत कम, यानी 1-2 महीने ही ऐसे होते हैं जो सनी होता है, तो अच्छा लगता है उनको, सनी है। हाँ, इंसानी फितरत है। ठीक है, तो बहरहाल ये कि मेरा एक सर सवाल है। जी। सर एक सवाल है। हाँ जी। सर द क्वेश्चन इज कि अगर हम लोग को बोलना हो कि द टेम्परेचर लीगन बी -4 ग्राड, सो जो -4 है उसके लिए इनका कोई और टर्म होगा या इसको -4 ही बोलेंगे? मीनूस बोलते हैं, ये मीनूस। ओके सर, थैंक या यू। या उसको बोलते हैं उल्टा फियाग्राट। उल्टा, उल्टा मतलब अंडर। हाँ। हाँ, ओके। जीरो से नीचे को मीनूस बोलते हैं या उल्टा बोलते हैं। द उल्टा। टेम्परेचर लीक्ड बाय उल्टा फियाग्राट -4 उल्टा। या मीनूस ओके, फियाग्राट। थैंक यू सर। हाँ, ठीक है, तो इस तरह से आप रिपोर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर। अच्छा। सर अच्छा, मेरा एक इसके सवाल है। जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि हम मंथ के लिए एम यूज कर रहे हैं ना, फिर तो सीजन के लिए हम क्या यूज करेंगे? एम ही यूज करेंगे, जैसे एम फ्रूटलूम या फिर एम शीनी, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में एम यानुआ यूज हाँ किए ना। हाँ, ये सीजन के देखिए। लिए हाँ, आ, हाँ, क्योंकि वो क्या है, वो है, किधर गया, क्योंकि दिया यानवा है ना, तो क्या होगा, इम यानवा। अब ये इम भी जो है डाटिव है। आपको लग रहा है ऐसे, क्योंकि वो इन देम हो गया ना, इन देम यानवा, वो क्या हो गया, इम हो गया। इम यानवा लिखा है ना, तो बेसिकली यस। इन देम यानवा है। इन देम यानवा, इन देम यानवा है। तो इसको आप शॉर्ट करके क्या लिखोगे, सॉरी, इम यानवा लिखोगे, इम यानवा। इसी तरह से आपने, जैसे विंटर का तो हम क्या कहेंगे, इम इन देम विंटर, इन देम विंटर। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, इम विंटर, इन्वेंटर। इम विंटर। जैसे मिट के साथ डाटिव आता है ना, इन के साथ भी डाटिव आता है, इन, इन के साथ भी डाटिव होता है, इसलिए इन देम क्या हो जाता है, इम हो जाता है। ठीक है। सही। हाँ, उसी का सर थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला। हाँ यस, नीचे जाए। ये थर्ड वाला was machen Sie in diesen Monaten? वस माखन जी इन दीजन मोनाटेन, मोनाटेन ये वो हो गया ना, प्लूरल हो गया। प्लूरल क्या हो जाता था, देन हो जाता था ना। यस। हाँ, इन दीजन मोना, वैसे मोनाटे होता है प्लूरल, साथ में एक एम लगाना पड़ता है। ये जो हम टेबल हम देख रहे थे डाटिव का, किधर गया टेबल, ये प्लूरल क्या होता है, देन, और आखिर में एक उसके नाउन के एंड में क्या लगता है, एक एन लगता है। वो मोनाटे था तो मोनाटन हो गया, और साथ में डन। दीजे दीजन हो गया था। ठीक है, प्लूरल की वजह से इन क्यों लगा था ना, इन। अच्छा, इसके बाद हम, अच्छा चलो, ये टॉपिक हमने छेड़ा है तो मैं पीछे आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे एक जो वो दिया हुआ है, रुक गया है। एक क्वेश्चन है। जी। सर जिस तरह आपने कहा था कि ये जो एन लगता है पॉजिटिव आर्टिकल के साथ, अब यहाँ पर डीजन जो है पॉजिटिव आर्टिकल है जो इसके साथ एन लगा है। डीजन, डीजन नहीं, डीजन पोजेसिव तो नहीं है। हाँ डाइनन, तो माइनन, डीजन तो ये तो हाँ डीजीज, हाँ ये तो डीज। यही सर, अब हमें नहीं पता था, ये फर्स्ट टाइम डीजन के साथ भी एन लगा, इसी तरह के और किस किस के साथ एन लगता है। जब भी वो तो इसकी वजह से है ना, इन डीजन, एक मिनट, ये वो दीजे है, दीज। अब मोनाटन है, अब मोनाटन क्या होता है, प्लूरल होता है ना,
तो प्लूरल प्लूरल की वजह से क्या हो जाता है वो, मोनाट तो खुद क्या होता है, दी मोनाटे होता है ना, दी मोनाटे। अब वो दी क्या हो जाता है, प्लूरल वाला देन हो जाता है ना। तो इसकी वजह से ये ए एन आ गया यहाँ पे। ये वो देन है किसका, मोनाटे का। ये जो ए एन है, ये देन है किसका। दीजे सब मतलब दिस होगा, दीजे दिस और हाँ दीजन दीस। दीजे, हाँ दीजे, हाँ दीजे दोज, दोज या दिस दीज मतलब दीज, सिंगल और हाँ दीज। हाँ दीज, इन दीज मंथ्स, हाँ दीज, दीजे, दीजे खुद वो है दीज। लेकिन ए एन कहाँ से आ गया, क्योंकि देन मोनाटन, वैसे तो दी मोनाटे है ना प्लूरल, लेकिन ये डाटिव हो गया इन की वजह से। तो ये क्या हो जाएगा, दी देन हो गया, देन मोनाटन हो गया ना, तो इसका ए एन इसके साथ लग जाएगा। अब जैसे वो होता है डाइनन, डाइनम, पोजेसिव, पोजेसिव के साथ भी लगता है और इसके साथ भी लगता है, जैसे दीजे। जी सर, यही बोल रही हूँ, जैसे पॉजिटिव आर्टिकल के साथ लगता है, अभी आज पता चला डीजन के साथ लग रहा है, तो और भी ऐसी चीजें हैं जिनके साथ लगता है। और भी मेरे जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन ये कि मतलब इससे पहले जो भी आएगा इस तरह का, दीजन, दीजम, या क्या कहते हैं डाइनम, या पोजेसिव आएगा, या डीजिस आएगा। अ, सर एडजेक्टिव भी आ जाए उसके साथ भी लगेगा ना? हाँ एडजेक्टिव भी मेरे ख्याल में लगेगा, हाँ अच्छा। कार्ल्टन, हाँ एडजेक्टिव भी लगेगा। हाँ हाँ हाँ, जैसे केल्टन मोनाटन, कोल्ड मंथ्स, एडजेक्टिव भी होगा, हाँ। मेरे ख्याल में जो भी इसके साथ आएगा उसके साथ ए एन लगेगा फिर, प्लूरल होने की वजह से। अब यहाँ पे ओके। सिर्फ, अगर सिर्फ मोनाट होता, दी मोनाट, तो क्या होता, दी इन दीजे मोनाट ना। यस, दिस मंथ होता। हाँ इन दीजे मोनाट होता, इन दीजे मोनाट, ठीक है, क्योंकि दी दिया हो जाता है ना, इन दीजे मोनाट, या खाल्टे मोनाट। यस सर। एडजेक्टिव होता तो क्या होता, खाल्टे मोनाट, खाल्टे मोनाट, ठीक है। अच्छा, वो जो मैं कह रहा था, एक मिनट इसको देखते हैं, क्योंकि एक भैंस चिड़ी है अभी, और कौन से डांठे होते हैं। ये मेरे ख्याल में अच्छा मौका है कि उसको देख लिया जाए। यहाँ पे थी एक चीज, ये तो वही था कि दिया देम हो जाता है, दी दिया हो जाता है, दस देम हो जाता है, दी प्लूरल वाला देन हो जाता है। अच्छा, ये वाला जो था, जब जब प्रोपोजिशन मिट हो तो क्या होता है, डाटिव होता है। वी erfahren mit dem Zug, सुख क्या दिया, सुख डेम हो गया क्योंकि डाटिव है। फुर, फुर क्या होता है, ये अगर प्रोपोजिशन फुर, फुर मतलब फोर, तो अकुजाटिव होता है। फाह कार्टन फुर देन सुख, दिया सुख क्योंकि देन सुख होता है अकुजाटिव में ना। फॉर देन सुख जिंट ठोया। अच्छा, वो इन वाला ये देखिए, इस फारे इन दी तुर्काई, इन, यहाँ पे तो अच्छा, हाँ, अगर आप कहे वो हिन का मतलब वेयर टू, यानी इसमें कोई मोशन है, कोई डायरेक्शन है, आप जा रहे हैं, उसमें इन के साथ क्या लगता है, अकुजाटिव लगता है। इश फारे इन दी तुर्काई, क्योंकि क्योंकि तुर्काई दी होती है, तो दी चेंज नहीं होगा, इन दी ही रहेगा। इश गे इन दी बिब्लियोथेक, बिब्लियोथेक दी होता है तो दी चेंज नहीं होगा, दी ही रहेगा, इन दी बिब्लियोथेक। इश फारे इश गे, यानी कोई डायरेक्शन है जो आप जा रहे हैं, वो हिन, तो इन वो क्या होगा, सेंटेंस अकुजाटिव होगा। लेकिन अगर वो हो वेयर, यानी पोजीशन हो, जब अगर उस वक्त इन आ जाए, तो उस वक्त क्या होता है, डाटिव होता है। इश लेजे, अगर ये बिब्लियोथेक हो तो क्या होगा, इश लेजे इन दिया इंडिया। बिब्लियोथेक, इन दिया बिब्लियोथेक होगा ना। यस। हाँ, क्योंकि दी दिया हो जाता है। इसी तरह से बान क्या था, दी बान था, अब क्या हो गया, इश लेजे इन दिया बान हो गया। यानी इन, अगर इन आ जाए तो डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस क्या है, आप कहीं जा रहे हैं या आप कहीं पे है। एक है वो हिन, यानी वेयर टू, एक है वो वेयर। तो अगर वो है
आप अपनी पोजीशन के बारे में बता रहे हैं, तो उस वक्त इन के साथ क्या लगेगा? डाटिव लगेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्शन बता रहे हैं कि मैं किधर जा रहा हूं, तो उस वक्त इन के साथ अक्यूजेटिव लगेगा। अगर अगर आप वो हिन बता रहे हैं कि मैं जा रहा हूं। सर सब सीजन और मंथ्स के साथ डाटिव लगेगा? नहीं नहीं, उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो इस पे डिपेंड करता है, इन पे मतलब प्रोपोजिशन पे डिपेंड करता है। अब देखिए, इसमें इन के साथ भी दो केसेस है। बास जगहों पे इन के साथ अक्यूजेटिव लगता है, बास जगहों पे इन के साथ डाटिव डाटिव। लगता है। अक्यूजेटिव उस वक्त लगता है जब आप बता रहे हो कि मैं किधर जा रहा हूं। वो हिन, इश फारे इन दी बिब्लियोथेक, इश फार इश गे इन दी बिब्लियोथेक, इश फारे इन दी तुर्काई। तो उस वक्त ये सेंटेंस अक्यूजेटिव होता है, तो आर्टिकल उसी हिसाब से चेंज होगा। दी है तो दी ही रहेगा। लेकिन जब आप बता रहे हो कि मैं कहाँ हूं, वो वेयर, ये वेयर टू है, ये वेयर है। जब आप अपना पोजीशन बता रहे हो कि मैं कहाँ पे हूं, तो उस वक्त इन के साथ जो भी आर्टिकल लगेगा वो डाटिव हो जाएगा। तो आप कहेंगे इश बिन इन दी इन दिया बिब्लियोथेक, इश लेजे इन दिया बिब्लियोथेक। ठीक है। सर लेजे मीन्स यहाँ उसका वर्क भी दिखा रहा है कि वो काम कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, इश लेजे मतलब वेयर। आप कहते इश लेजे, एक तो आएगा व्हाट या वेयर। अगर इन आ गया तो इसका मतलब है कि आप आपका वर्ब बता रहे हैं कि किधर। इश लेजे इन, आप इकट्ठे पढ़े हमेशा ना, इश लेजे मिट, इश लेजे इन। अगर इन आ और गया। सर यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन था इधर भी माखन जी मीन्स वर्क का बता रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ना, इसलिए इन के साथ जो डेजे है उसके साथ डाटिफ आया है। आप समझ आ गए? हाँ ठीक है। इसी तरह से अगर टेम्पोरल हो, वन मतलब कप, इन विंटर मतलब जब आप इन इन जब आप टाइम बता रहे हो, कब, इन इन दिसंबर, इन विंटर, मतलब इस मंथ में। या जैसे वो पीछे मेरे ख्याल में याया ने पूछा था कि यस, सीजन हाँ एंड मंथ्स हाँ का। हाँ, सीजन मंथ्स, वन, वन का मतलब कब, उसके साथ भी तो इन आता है ना, इन विंटर, यस इन यस। समर, उस वक्त भी डाटिव होता है वो। इन देम विंटर, इन देम यानवा। तो उसकी वजह से इन क्या हो जाएगा? इम हो जाएगा, इन देम इम हो जाएगा। ठीक है, ये इन ओके। के साथ है। अच्छा, एक एक प्रोपोजिशन है ऑफ। ऑफ का मतलब है ऑन। जैसे मैं कहते हूँ दस बुख इज ऑफ देम टिश, जब ऑफ आता है वो हिन मतलब किधर। इश फारे ऑफ दी इंजल, मैं मतलब आइलैंड पे जा रहा हूँ, आइलैंड पे जा रहा हूँ। इश फारे ऑफ दी इंजल क्रेटा, ये नाम है इंजल का। मतलब मैं आइलैंड क्रेटा जा रहा हूँ, आइलैंड क्रेटा पे जा रहा हूँ, ऑफ द इंजल। ये वो अकुजाटिव वाला है, तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑफ के साथ अकुजाटिव आएगा। एक है सू। अच्छा सर, ये एक और चीज इसमें, हाँ, अब कुछ कंट्रीज के जो आर्टिकल्स है उसके साथ जो है इन प्लस अकुजाटिव यूज होगा, इसमें जो लिखा है। डिपेंड करता है। अगर वो आप उधर जा रहे हो तो आप अकुजाटिव यूज करोगे। अगर वहां पे आप है तो वो डाटिव होगा। इश बिन इन इंडिया तुर्काई हो जाएगा। फिर इश बिन इंडिया तुर्काई, इश वो ने इंडिया तुर्काई, वो वेयर, मैं रहता हूं। ठीक है। ओके जब आप सर। कहते हैं कि मैं उधर जा रहा हूं, तो वो अकुजेटिव होगा, इश फारे इंडिया तुर्काई। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये ऑफ सू वाला भी आएगा। ये फिर उस वक्त डिस्कस करेंगे इसको। ये अभी जो नेक्स्ट हमारा आ रहा है, इसमें अपना वोकेशन के बारे में बता रहा है कि मैं तुर्की जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा उधर। फिर ये प्रोपोजिशन आएगा, ऑफ दिया इन, ऑफ दी इंजल होगा, इन होगा, और एक और भी होगा, उसको देखेंगे फिर। ये मैंने वैसे ही, क्योंकि बेस चिढ़ गई थी, तो मैंने कहा चलो ये अच्छा टाइम है, इसको हम एक दफा देख लेते हैं। ये अभी कुछ आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, जो शुरू शुरू लेसन में आप लोग पूछते थे ये इम क्यों आ रहा है, ये इन इन इम क्यों हो रहा है। तो ये इन इम डाटिव होने की वजह से हो रहा है, इन देम की वजह से हो रहा है। यस। अच्छा, ये हम सुनते हैं एंडिश उर्लाउ। ये मैं एक ऑडियो रन करूंगा। ये भी एक तरह से स्पीकिंग का वो है, एक टेस्ट है। तो आप, मैंने टिप क्या बताया था कि आप ये टेक्स्ट पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट वो चीजें आप नोट करेंगे कि किस ये सेंटेंस किस चीज के बारे में बता रहा है। जैसे जी मोशन इन उस्तराइश नुआ शी फारन, कि मतलब शी, यानी ये ब्रिगिट, ब्रिगिट जो है, ये सिर्फ स्कीइंग करना चाहती है उस्तराइश में।
तो आप यहाँ पे तो दिया हुआ है बिरगिट फैट nach Österreich। बिरगिट जो है वो उस्तराइश जा रही है। उसने कहा होगा, उसने कही होगी कि मैं उस्तराइश जा रही हूँ, तो ये रिश्ते गए। अब उसने कहीं पे कही होगी कि मैं करूंगा क्या वहां पे उस्तराइश में। तो यहाँ पे है कि जी मोस्टन इन उस्तराइश नुअशी फारन, वो सिर्फ स्कीइंग के लिए गई है। तो आपने बताना है कि ट्रू फॉल्स। आप कैच करेंगे कि सिर्फ शी बोला है या कुछ और भी कर रही है। दिया उर्लाब डावट सेंट आगे, वहां पे वो 10 दिन गुजारेगी, उर्लाब उसकी जो छुट्टियां है, ये आप नोट करेंगे। दूसरा बंदा है यूलियस। यूलियस मार्क विंटर स्पोर्ट निश्ट बिजोंडस। उसको मतलब वो स्पेशल नहीं समझता विंटर स्पोर्ट को, यानी इतना ज्यादा अहमियत नहीं देता विंटर स्पोर्ट को। या फैट इम जोमर नाख ग्रीशनलैंड, ये यूलियस जो है ये वो कुछ शायद बता रहा होगा। आपने नोट करना है कि वो उसने कहा बताया है कि वो कह रहा है कि वो समर में ग्रीशनलैंड जाएगा छुट्टियों पे। यूलियस माख ज्ञान उर्लॉब इन ग्रीशनलैंड, वो पसंद करता है छुट्टियां ग्रीशनलैंड में, ग्रीस में। बिरगिट विल im Sommer auch nach Griechenland fahren। बिरगिट भी समर में ग्रीशनलैंड विल। विल विल अभी आएगा। विल का मतलब है वांट, डिजायर, लाइक, इंटेंशन। मतलब उसका इंटेंट क्या है, ये इंग्लिश वाला विल नहीं है जिसको इंग्लिश में हम नहीं बोलते हैं आई वॉन्ट, आई लाइक, आई इंटेंड टू गो। ठीक है, चाहता है। ठीक है, Yes. तो ये आपने नोट कर लिया। ये एक यूलियस है, एक बिरगिट है, ये अपने वोकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आप जब आप लिसनिंग होगा तो आप इसको गौर से एक दफा पढ़ेंगे कि मैंने क्या कैच करना है। यहाँ से आपने क्या कैच करना है, कितने दिन। यहाँ से आपने क्या कैच करना है कि सिर्फ Shifara. सिर्फ स्की फारन। यहाँ पे आपने नोट करना है कि यूलियस पसंद करता है या नहीं करता विंटर स्पोर्ट को। यहाँ पे आपने ग्रीशनलैंड नोट करना है कि ये समर में वहां जा रहा है नहीं जा रहा, या बिरगिट समर में वहां जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, ये आपने नोट कर। अब मैं रन करता हूँ इस ऑडियो को। ये है 11। Kapitel 7, Aufgabe 16. Endlich Urlaub. Hallo, Julius. Hallo Birgit, wie geht es dir? Danke, sehr gut. Ich fahre morgen in den Urlaub. Toll. Wohin fährst du? Ich fahre nach Österreich, nach Aachenkirch. Zum Skifahren? Ja, zum Skifahren. Aber ich möchte auch lecker essen, ein Buch lesen oder einfach nichts tun. Ich war schon mal in Achenkirch, aber nur einen Tag. In welchem Hotel wohnst du? Im Posthotel. Das ist ein Wellnesshotel. Es gibt dort viele Freizeitangebote. Zum Beispiel hat das Hotel ein Schwimmbad. Man kann auch zur Massage gehen. Das klingt gut. Wie lange bleibst du? Ich bleibe 10 Tage. Wann fährst du in den Urlaub? Ich fahre erst im Sommer, im Juli mit meiner Familie. Wohin fahrt ihr? Wir wollen in diesem Jahr nach Griechenland fahren, auf die Insel Kreta. Warst du schon mal in Griechenland? Nein, noch nicht. Es ist herrlich. Die Sonne, das Meer, das Essen. Vielleicht fahre ich im Sommer in die Türkei. Dort gibt es auch Sonne, Meer und gutes Essen. Aber morgen fahre ich erstmal nach Österreich. Na dann, viel Spaß. Danke. अच्छा, एक दफा और चला दो। जी सर। यस, एक दफा चला है। Kapitel 7, Aufgabe 16. Endlich Urlaub. Hallo, Julius. Hallo Birgit, wie geht es dir? Danke, sehr gut. Ich fahre morgen in den Urlaub. Toll. Wohin fährst du? Ich fahre nach Österreich, nach Aachenkirch. Zum Skifahren? Ja, zum Skifahren. Aber ich möchte auch lecker essen, ein Buch lesen oder einfach nichts tun. Ich war schon mal in Achenkirch, aber nur einen Tag. In welchem Hotel wohnst du? Im Posthotel. Das ist ein Wellnesshotel. Es gibt dort viele Freizeitangebote. Zum Beispiel hat das Hotel ein Schwimmbad.
Man kann auch zur Massage gehen. Das klingt gut. Wie lange bleibst du? Ich bleibe 10 Tage. Wann fährst du in den Urlaub? Ich fahre erst im Sommer, im Juli mit meiner Familie. Wohin fahrt ihr? Wir wollen in diesem Jahr nach Griechenland fahren, auf die Insel Kreta. Warst du schon mal in Griechenland? Nein, noch nicht. Es ist herrlich. Die Sonne, das Meer, das Essen. Vielleicht fahre ich im Sommer in die Türkei. Dort gibt es auch Sonne, Meer und gutes Essen. Aber morgen fahre ich erstmal nach Österreich. Na dann, viel Spaß. Danke. अच्छा मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मैं शुरू करता हूँ। यह सामने मेरे है हवा आपसे। ये पहला Sie möchten in Österreich nur Ski fahren? सर रिश्तिक नहीं। फाल्स फाल्स किसने कहा फाल्श? सर मैंने खुद बोला जब रिश्तिक वो ने जाहिर बोला है फाल्स ये आपने रिश्तिक बोला, मैंने कहा नहीं तो फाल्श। कोई और बताएगा फाल्श किसने लिखा था? सर मैंने फॉल्स लिखा था। अच्छा आप बताएं क्यों? सर उसने कहा था कि अब मुश्त और लेखा ऐसन इस हाँ तरह कुछ हाँ बोला। हाँ, उसने बोला था कि मुश्तस टू शी फारन, उसने कहा था या, फिर बाद में उसने बोला था अबा इश अबा इश पता नहीं क्या, और गिब्स auch dort lecker essen, मतलब वहाँ पे अच्छे खाने भी है, यानी nicht nur वो है, मतलब नुआ का मतलब है ओनली। ओनली शी फारम के लिए नहीं गया, उसने कुछ और भी बताया था कि अच्छे खाने हैं और ये है वो है, ठीक है। तो ये नुआ गलत हो जाएगा, फाल्श होगा। अच्छा इसके बाद मोहसिन, der Urlaub dauert 10 Tage। मोहसिन। हम्म, सर ये मैंने सही सर मार्क ये किया मेरे ख्याल में हाँ सर ये मेरे ख्याल में रिश्ते है उसमें हाँ हाँ आनंद हाँ आनंद का बोला था, लेकिन वो यूलियस का आनंद का बोला था। उसने चले याहिया आप बताए पूरा, आप क्या कहते हैं, ये रिश्ते के फाल्श? ये सर उसने फाल्श है क्योंकि उसने फिया कुछ बोला था। नहीं 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 नहीं, रिश्ते के। कोई और बताएगा उसने बोला था कि wie lange bleibst du dort, उसने कहा था 10 Tage। जी जी सर 10 Tage बोला था, जी 10 सर सर Tage। यूलिया का बोल रहा था आनंद टाक का, हाँ ताकि कैसे? सर उसने ब्रिट का बोला था कि सेंट टाक है, बाकी फिर यूलियस ने बोला था आनंद टाक यूनियन के बारे हाँ में, ऐसे कुछ बोला था। दिया उर्लाप, ये दिया उर्लाप उसकी बात हो रही है, इसकी किसकी, ये क्या है, बिरगिट की। बिरगिट क्योंकि अपना बता रहा था ना कि मैं उस्तराइश जा रहा हूँ, वहां पे मैं शी फारन करूंगा, अच्छे खाने हैं। फिर यूलियस ने पूछा था कि आप कितने विलांगे विलांगे ब्लाइबन जी डॉट, उसने कहा था कि सेंट आगे। फिर उसने कहा था वारन जी शोन डॉट, फिर यूलियस से पूछा था कि आप वहां पे थे, उसने कहा था मैं था लेकिन नो आइन ठागे। वो यूलियस ने बोला था मैं सिर्फ एक दिन था, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है ऊपर? उसकी हो रही, बिरगिट की हो रही है। उसने बोला था सेंट ठागे। अच्छा ड्रिटा है यूलियस मार्क विंटर स्पोर्ट निस्ट बिजोंडस कबीर। सर ये फॉल्स है। अच्छा क्यों? इसके इन्होंने सर इसके बारे में बात ही नहीं की इंटरेस्ट वगैरह। समर के बारे में हाँ समर के बारे में एक तो इसने बात नहीं की, और दूसरा इसने, अगर आपको याद हो, बोला था दस क्लिंग गुड, दस क्लिंग गुड इट साउंड्स। यस सर हाँ तारीफ इसकी। हाँ हाँ, उसने कहा था कि दस क्लिंग गुड, ठीक है। ठीक सर। मुझे एक मिनट दे दी, कोई कॉल आ रही है इंपॉर्टेंट। ठीक सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नोमान भाई, खूब हंसे बखैर हंसे। शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आमची मॅनेजर काम خدونا أصلا أظن كيس the complex branch أنت بيشي accounting.
हाँ 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 no, 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 हाँ हाँ नहीं करो हाँ नहीं सलाम 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 अच्छा ये इसके बाद मैं आता हूँ जमील अहमद या फैट im Sommer nach Griechenland यूलियस के बारे में है। रिश्ते के सर। हाँ उसने ग्रीशनलैंड का बोला था कि मैं वो समर कहा था कि नाख हाँ ग्रीसलैंड का। हाँ गुटे पता नहीं गुटे जोने और वेटर और ये इस तरह से बोला था। अच्छा शाइना Julius macht gern Urlaub in Griechenland। Sir, I guess it's richtig. खिश्तिश है क्योंकि उसने बोला था मैं ग्रीशनलैंड जा रहा हूँ तो उधर बड़ा अच्छा है सनी है इंजल क्रेटा में सनी है पता नहीं और क्या क्या इस तरह से लेखा एसन शायद बोला था। अच्छा कामरान मोहम्मद कामरान Birgit will im Sommer auch nach Griechenland fahren। उसामा सर ये थिंक फॉल्स है क्योंकि उसमें बाकी सारी उसने चीज़ें बताई थी एंड दी सोने नहीं दी नहीं से ये कह रहे हैं कि ब्रिगिट जो है ये ग्रीशनलैंड जाएगी समर में। अम, नहीं सर उसने आई गेस टर्की का कहा था। हाँ तुर्की का बोला था उसने कि ja ich gehe im Türkei im Sommer dort ist auch so eine पता नहीं Meer समंदर को बोलते हैं जोना Meer समंदर और इस तरह खाने से। की बात। हाँ खाने की बात शायद की थी लेखा एसन इस तरह से ठीक है फाल्स। अच्छा ये आप लोग मैं एक 2 मिनट देता हूँ ये टेक्स्ट भी आप पढ़ ले और इसको फील करें वही वही कन्वर्सेशन है इसमें आपने वो करना है उनकी कन्वर्सेशन के हिसाब से आपने इसको फिल करना है आपके जहन में आ रहा होगा कि क्या बोला था इसका इशफारे जैसे बिरगिट ने बोला था इशफारे क्या बोला था नाखुस्तराइश बोला था ना नाख नाख कुछ करके बोला था आखन किर्शन ठीक है। अच्छा इसको अगर ऐसे 2 बंदे पढ़े एक बिरगिट एक यूलियस और
चलो एक रहमानिया आप बिरगिट है, और आप बिरगिट है, और यूलियस जो है एक, लेट्स से, इसका तो माइक मेरे ख्याल में ख़राब रहता है। कबीर, चले आप, कबीर आप वो है, यूलियस है, ठीक है। आप दोनों पढ़े और साथ में इसको फील भी करेंगे। जी सर। हम्म। Hallo Julius, Hallo Birgit, wie geht es dir? danke, sehr gut. Ich fahre morgen in den Urlaub. 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 Toll, fährst du? Wohin fährst du? Wohin fährst du? Ich fahre nach Österreich, Österreich. Österreich. Österreich, nach Aachenkirch. I don't know what's that. हाँ ठीक है, मैं Zoom, एक दफा लिख लूँ, एक मिनट आप लोग रुक जाए। जी नाख सर। ओस्तराइश और नाख आखन किर्शन। Aachenkirch. आखन किर्शन वो जगह है ओस्तराइश में जहाँ ये जा रही है। नाख आखन, आखन किर्शन, नाख आखन किर्शन, ठीक है। नाख ओस्तराइश, नाख आखन किर्शन। अच्छा आगे, यूलियस। Skifahren? Ja, zum Skifahren, aber ich möchte auch Lecker essen, लेका, ein Buch लेका lesen, एसन, लेका, lecker essen, ein Buch lesen oder लेजन, einfach सॉरी, ein lesen. Buch lesen। Ein Buch lesen oder einfach nichts tun. Ich war schon mal in Aachenkirch, किर्शन, aber nur einen Tag. In welchem Hotel wohnst du? Im Post-Hotel, das ist ein Wellness-Hotel. Es gibt dort viele verreisten Danke-Boote, zum सॉरी, एक Beispiel मिनट एक मिनट एक मिनट। Freizeiten Angebote, Freizeiten मतलब फ्री टाइम्स ऑफर्स। Es gibt viele Freizeiten Angebote, फ्री टाइम्स ऑफर्स, यानी फ्री टाइम्स में आप क्या कर सकते हैं। आगे, Freisangen-Angebote, zum Freizeiten, Beispiel Freizeiten, Freizeiten-Angebote, zum Beispiel hat das Hotel ein Schwimmbad. Man kann auch zur Massage gehen. man kann auch zu Massage gehen. Zum Beispiel, for example, hat das Hotel ein Schwimmbad, Swimmingpool। अच्छा आगे, Das klingt gut. Wie lange bleibst du? Ich bliebe 7 एक Tage मिनट एक मिनट und एक मिनट एक मिनट एक मिनट। दस दस क्लिंग गुड का मतलब है इट साउंड्स गुड। अच्छा, इश ब्लीबे नहीं, इश ब्लाइबे, आई लिव। bleibe. जी सर. Ich bleibe 7 Tage. जेन Wann नहीं, fährst du? सेन ठागे, सेन। 10. Sir, 10. 10 Tage. Wann fährst du in den Urlaub? वन fährst du in den Urlaub? Wann fährst du in den Urlaub? Ich fahre erst im Sommer, im Juli mit meiner Familie. Wohin fahrt ihr? Wohin fährt ihr? Wohin fährt ihr? Wohin fährt ihr? Wir wollen in diesem Jahr nach Griechenland fahren. Diesem. Wir wollen in diesem Jahr. Wir wollen in diesem Jahr nach Griechenland fahren. Griechenland. Griechenland. Griechenland, okay, sir. Griechenland fahren auf die Insel Kreta. Warst du schon mal in Griechenland? Es ist herrlich, die Sonne, das Meer, das Essen. Essen नहीं, Essen, das Essen। Essen, sorry, Essen. अच्छा नहीं, आपका ये आगे वाला था, मैं वो मुझे पढ़ना। Oh. जी। Vielleicht fahre ich im Sommer in die Türkei. In die Türkei। ये आगे वाला भी पढ़े। Oh, ये भी मेरा है. Dort gibt es auch Sonne, Meer und gutes Essen. Aber morgen fahre ich erstmal nach Österreich. Österreich. Erstmal nach Österreich. Österreich। Na dann, viel Spaß. Spaß, viel Spaß। Spaß। Danke. Okay.
अच्छा, एक दफा मैं सर आप लोगों के लिए एक्सक्यूज पढ़ता हूँ, मी। क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ सुना था वो, कि आपकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सही हो जाए। ये स्टार्ट यहाँ से ब्रिगिट ने किया था, अलो यूलियस। यूलियस ने क्या कहा था, अलो बिरगिट वी गेटस दिया, वी गेटस दिया मतलब हाउ आर यू। हाउ आर यू? हाँ, ब्रिगिट ने क्या कहा था, danke sehr gut, ich fahre morgen in den Urlaub. Toll, wohin fährst du? Ich fahre morgen in den Urlaub. मैं कल छुट्टियों पे जा रहा हूँ। तो यूलियस ने कहा था toll, wohin fährst du? उसने कहा था ich fahre nach Österreich, nach Aachen Kirch, Aachen Kirch था ये, सॉरी, Aachen Kirch, nach Aachen Kirch। यूलियस ने कहा, यूलियस zum Skifahren। अब बिरगिट क्या कहती है, ja zum Skifahren, aber ich möchte auch lecker essen, ein Buch lesen oder einfach nichts tun, einfach nichts tun। या कुछ नहीं, मतलब ये कि मतलब रेस्ट करूंगी, einfach nichts tun, कुछ नहीं करूंगी, ये भी मतलब स्पास है एक तरह से। यूलियस क्या कहता है, ich war schon mal im Aachenkirch, aber nur ein Tag। In welchem Hotel wohnst du? Birgit क्या कहता है, im Posthotel, das ist ein Wellness-Hotel, es gibt dort viele Freizeitenangebot, Freizeitenangebot, Free Times Offers. Zum Beispiel hat das Hotel ein Schwimmbad, man kann auch zur Massage gehen, मसाज के लिए जा सकता है। अच्छा, यूलियस क्या कहते हैं, das klingt gut, it sounds good, wie lange bleibst du? ब्रिगिट क्या कहते हैं, ich bleibe 10 Tage, wann fährst du in den Urlaub? और यूलियस से पूछता है कि आप छुट्टियों पे कब जा रहे हो, वो क्या कहता है, ich fahre erst im Sommer, I go in summer, erst मतलब erst का मतलब है मतलब possibly for the first time, erst, ich fahre erst im Sommer, im Juli mit meinem Familie। Wohin fährt ihr? Julius क्या कहता है, wir wollen in diesem Jahr nach nach Griechenland बोला था ना, जी। nach Griechenland, nach Griechenland, Griechen nach Griechenland fahren। और आगे क्या बोला था, auf Auf die Insel। auf der Insel, auf der Insel Kreta, क्रेटा नाम है उस इंजल का, आइलैंड का। warst du schon mal in Griechenland? यूलियस कहता है, ये क्या है, ये खुद यूलियस कह रहा है और आंसर भी खुद दे रहा है, ये गलत है। ये मेरे ख्याल में बिरगिट होना चाहिए, नाइन noch nicht ना, क्योंकि यूलियस ने पूछा था। यस सर। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये शायद पता नहीं, ये अब शायद इसने पूछा था, इसने बिरगिट ने वास्तु पूछ शून्य। रहे हो ना कि व्हाट डू शोन मॉल इन ग्रीसलैंड, क्या आप पहले वहां थे? हाँ, ये पता नहीं कौन पूछ रहा है, क्योंकि ये वो होता ना, शायद ये ब्रिगिट ने पूछा था। यूलियस ने कहा था नाइन noch nicht। अब यूलियस क्या कहता है, es ist herrlich, herrlich मतलब लवली, हाँ, die Sonne, das Meer, sie, das Essen, vielleicht fahre ich im Sommer। ब्रिगिट क्या कहता है, vielleicht fahre ich im Sommer in die तुर्काई। Türkei बोला था, Türkei, in die Türkei। Dort gibt es auch Sonne, Meer und gute Essen. Aber morgen fahre ich erst mal nach Österreich. Nach Österreich। nach Österreich, ठीक है। नदन फील स्पास, ये हमेशा फील स्पास ज्यादा यूज करते हैं। फील स्पास का मतलब है हैव फन, हैव मच फन, ठीक है। फील मच मच फन, स्पास फन को बोलते हैं, डांग के, ठीक है। तो ये सर नॉर्डन का क्या मतलब है? क्या, नॉर्डन। नादन, यस। अच्छा ये नादन एक वो है, जैसे हम क्या बोले, नादन, नादन एक मिनट में इसको देखो, ये बड़ा नादन, जैसे हम नहीं कहते अच्छा, नादन, एक मिनट में इंग्लिश में मैं देखता हूँ इसका क्या है जी, नादन। सर इसका है वेल देन हैव फन। अच्छा, वेल देन, नादन यस, वेल देन, हाँ वेल देन, वेल देन हैव फन, वेल देन, ठीक है। नादन वेल देन, ये दन देन है,
वेल देन, वेल देन, हैव फन, नादान, फील स्पास। ठीक है, ये टेक्स्ट। अच्छा, इसमें देखिए जो नई चीजें हमने देखी अभी पीछे ग्रामर में देखेंगे कि वो हिन, वेयर टू, इश फारे nach Hause, nach Hause, टू, nach का मतलब है टू, nach Hause, आई गो टू होम, nach Spanien, nach Berlin। अगर कोई कंट्री या सिटी के साथ आर्टिकल नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, उस कंट्री का नाम। इश फारे nach पाकिस्तान, इश फारे nach कराची, nach, nach का मतलब टू। अच्छा, अगर कोई कंट्री जिसके साथ आर्टिकल लगा हो तो वो नाख नहीं होगा, उस वक्त क्या होगा, इन। इश फारे इन दी तुर्काई, इश फारे इन दी श्वाइस। ठीक है, अगर कोई कंट्री जिसके साथ आर्टिकल लगा हो, इश फारे इन दी ईरान, ईरान के साथ भी दी लगता है। इन दी ईरान, इन दी तुर्काई, इन दी श्वाइस, और भी होंगे। अच्छा, कुछ है जिनके साथ आर्टिकल लगता है। जब किसी कंट्री के साथ आर्टिकल लगा हो तो इन दी इशफारे, वरना आप क्या करते हैं, ना हाउजा ना स्पानियन, या ऑफ दी। अगर आप किसी आइलैंड पे जाते हैं, ऑफ द इंजल करेटा, इशफारे ऑफ द इंजल करेटा। या सुम, सुम भी लगाते हैं, सू, सू भी टू होता है ना, सू। जी, सॉरी, मैं आपकी आवाज कट रही है। आप क्या क्या पूछा था आपने? नेक्स्ट कहाँ चला गया इसमें से? जी, क्या पूछा था आपने? अच्छा, मैं जो बता रहा था वो सू, एक सू भी होता है ना, सू। सर सू सुर सुम, ये तीन होते हैं, ये तीनों किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, सू सुर सुम? वो फॉर्म होते हैं सू के। एक मिनट में इसमें से निकलूं एक दफा। ये मेरा टेक्स्ट किधर गया? ये बड़ा अच्छी चीज थी यहाँ पे। आ, ये तो नहीं था, नहीं, नहीं था। पता नहीं किधर चला गया वो टेक्स्ट। लिखना बड़ा अच्छा था यहाँ पे। बहरहाल यहाँ पे एक सू होता है ना। अब ये जब आप सू होता है, जैसे सुम, ये सू देम है, सुम, सू देम। मेरा वो सर ये टेक्स्ट लेफ्ट यहाँ से जो गुम हो गया। वो बड़ा अच्छा सर ये हो। लेफ्ट जो पेंसिल का निशान है इस पे क्लिक कर लें, ये लेफ्ट पे जो है। ये यस सर, इस पे क्लिक कर लें। यस सर, इस अभी टेक्स्ट जो आ रहा है ये। नहीं, ये टेक्स्ट वो वाला नहीं था, यहाँ पे एक टेक्स्ट का ऑप्शन था। ऊपर वाला, ये पेंसिल से ऊपर वाला जो है, ऊपर से पेंसिल से ऊपर वाला कमेंट का जो निशान है, इस पे, हाँ, इस पे आ जाए। टेक्स्ट। टेक्स्ट पे आ जाए सर। हाँ, टेक्स्ट हाइनफूगन। अच्छा, हाँ, ये नहीं आ रहा है, नहीं है सर। नहीं आ रहा है। इधर पहले आता था वो निशान, टेक्स्ट, टेक्स्ट हाइनफूगन। ये आपका जुबान भी सर जर्मन है। हाँ, तो डिस्ट्रैक्शन, आप टेक्स्ट बेहतर हाइनफूगन, समझ सकते टेक्स्ट कमेंट हाइनफूगन, ये वाला करते हैं। चले, ये भी ठीक है। इसको मैं करता हूँ। अच्छा, ये मैं कहता था सू, तो सू क्या है, टू, इसका मतलब है। अब ये सुम है, बेसिकली क्या है, सुम, सू देम है ये, सू देम फ्लूगाफन। क्योंकि क्या होता है, 10 फ्लूगाफन होता है ना, तो डाटिव में क्या होता है, सू देम हो जाता है। ठीक है, अभी आएंगे उस पे कि ये क्या है। तो ये कहना ये चाहता है कि वो हिन, वो हिन का मतलब है वेयर टू, हम जो पीछे देख रहे थे। अच्छा, वो हिन में क्या होता है, वो हिन में आप नाख यूज करते हो, मतलब वो हिन किधर, इश, इश गे, इश फ्लीगे, इश फारे,
Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Spanien. हाउजा का मतलब होम, आई गो टू होम। ये अगर कंट्री जिसके साथ आर्टिकल ना लगा हो तो आप नाक लगाते, इश गे नाक पाकिस्तान नाक। अगर वो कंट्री जिसके साथ आर्टिकल लगा हो तो कहते हैं इन दी, इश फारे इन दी, नाक नहीं होगा, फिर इन दी होगा तुर्काई। अगर अब कोई इंजल वगैरह हो तो आप कहेंगे ऑफ दी, इन दी नहीं, ऑफ दी इंजल। अगर कोई जगह हो जैसे इंस्टीट्यूट हो, जैसे फ्लूगाफन, आखबाइट, हाँ, तो क्या होगा, सुम फ्लुग आफन, सुम फ्लुग आफन। फ्लुग आफन क्यों आ गया था ये? क्योंकि फ्लुग आफन 10 फ्लुग आफन होता है, ये डाटिव बन जाता है, तो ये क्या होगा, सु देम फ्लुग आफन। सु आखबाइट, ये सु आखबाइट जो है ना, ये ये बेसिकली है सु दिया आखबाइट। क्योंकि आखबाइट क्या होता है, दी आखबाइट होता है ना, डाटिव में दी क्या हो जाता है, दिया हो जाता है, इसलिए क्या हो गया, ये सु हो गया, सु दिया। सु दिया को आप शॉर्ट करके क्या लिखते हो, सु दिया को आप शॉर्ट करके लिखते हो सु। ठीक, सु देम को आप शॉर्ट करके लिखते हो सुम। ठीक है, हाँ। ये इस पे आते हैं, जैसे ये कहता है कि लैंड ओन आर्टिकल, जैसे डॉइचलैंड, ओस्तराइच, पाकिस्तान, इटालियन, शीना, ग्रीशनलैंड, माइस्टन लैंडा। ज्यादातर कंट्रीज के साथ आर्टिकल नहीं लगता, आप सिंपल नाख लिखेंगे, इश फारे नाख, इश फ्लीगे नाख, पाकिस्तान, इस्पानियन। वो जो लैंडा आर्टिकल लगता है जिसके साथ, जैसे दी श्वाइस, दी तुर्काई, दी सुलवकाई, दी नीदरलैंडे, दी यूएसआ, दी यूएसआ प्लूरल, इनके साथ आर्टिकल लगता है। ठीक है, अच्छा, अब उस पे हर सॉरी हर आइलैंड के साथ ऑफ दी लिखे लगेगा। हाँ, जब भी इंजल आएगा तो ऑफ, ऑफ दी आएगा। ठीक है, ऑफ दी। सर ये शॉर्ट करना जरूरी है कि हम जू करें इसको, या हम वो भी लिख सकते हैं कि जू हाँ, देम? वो भी लिख सकते हो, लेकिन जी लेकिन जब आप पढ़ेंगे अगर इम लगा हो तो आपको पता होना चाहिए इन देम है ये। ठीक है, जी। हाँ, वो शॉर्ट करके लिखते तो आपको पता होना चाहिए कि वो है, लेकिन आप जरूरी नहीं आप शॉर्ट करें उसको, आप उसको इन देम लिख सकते हो, शॉर्ट आप ना भी करें तो ठीक है वो। अच्छा, ये हम देख रहे थे कि जब आपके पास ये प्रोपोजिशन है ना, मिट और फूर। अच्छा, मिट किसी भी केस में मिट के साथ हमेशा क्या लगता है, डाटिव लगता है। चाहे वो हो, वो हिन हो, हमेशा मिट के साथ डाटिव लगेगा। और फुर के साथ हमेशा अकुजेटिव लगेगा। अच्छा, अब अगर वो हिन है, यानी आप कहीं जा रहे हैं, डायरेक्शन है, कोई जा रहे हैं, तो डिपेंड करता है। नाख, नाख के साथ डाटिव लगेगा या ओन आर्टिकल। इश्क, इश्क ये नाख पाकिस्तान, इश्क ये नाख डॉइचलैंड, इश्क ये नाख हाउजा। जैसे यहाँ पे इश फारे नाख स्पानियन, इश फारे नाख बर्लिन। ठीक है, ओन आर्टिकल है, अगर आर्टिकल होगा तो इश फारे नाख हाउजा। अगर अगर आर्टिकल होगा तो उसके साथ नाख के साथ वो लगेगा, डाटिव लगेगा। अच्छा, सू है, सू के साथ हमेशा वो हिन, अगर वो हिन है तो सू के साथ क्या लगेगा, हमेशा डाटिव लगेगा। इश फारे सू आखबाइट, मैंने बताया आखबाइट दिया आखबाइट होता है, तो ये बेसिकली सू दिया आखबाइट होगा। सू दिया आखबाइट को हम क्या लिखेंगे, सू शॉर्ट करके। इश फारे सुम बानोफ, क्योंकि दिया बानोफ होता है, या 10 बानोफ होते हैं, दिया बानोफ होते हैं मेरे ख्याल में। इश फारे सुम बानोफ, तो ये क्या होगा, इश फारे सू देम बानोफ, तो सुम बानोफ होगा, सू के साथ डाटिव लगेगा। अच्छा, ऑफ, ऑफ के साथ हमेशा अकुजेटिव लगता है। इश फारे ऑफ दी इंजल क्रेटा, ऑफ दी इंजल, जब भी ऑफ होगा तो अकुजेटिव होगा, वो हिन के केस में। और जब भी इन होगा अकुजेटिव लगेगा। इश फारे इन दी तुर्काई, इश गे इन दी बिब्लियोथेक, हाँ, इश गे इन दी बिब्लियोथेक, क्योंकि वो हिन है, वो हिन में इन अकुजेटिव लगेगा। अच्छा, वो, अब वो हिन नहीं बल्कि वो पोजीशन कहाँ पे हो, तो इश लेजे इन दी बिब्लियोथेक, इन दिया बिब्लियोथेक होगा ना, क्योंकि दी बिब्लियोथेक है।
Ich lese in der S-Bahn, क्योंकि दी बान है। Ich lese in dem Zug, क्योंकि der Zug है। Ich lese im Zug, इनके साथ डाटिव लगेगा। या जब वन हो, टाइम हो, कोई सीजन हो, इन dem विंटर, क्योंकि der विंटर होता है। इन dem Januar, क्योंकि der Januar होता है। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। सर मेरा एक सवाल है जी। अगर जिसका हमें आर्टिकल पता ना हो, जैसे दी तुर्काई, अगर नक तुर्काई कर लें तो गलत होगा? कंट्री का आर्टिकल पता ना हो, इसमें आर्टिकल लगेगा नहीं लगेगा, तो हमें तो सब कंट्रीज का तो नहीं पता है। अगर हम लोग उसको नक तुर्काई कर दें, हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही कंट्रीज होते हैं, ज्यादा से ज्यादा शायद 8-10 कंट्रीज हो। ये जैसे ऊपर नहीं दिया था, जी जी, ये ज्यादा नहीं है, 8-10 कंट्रीज है ये जिनके साथ आर्टिकल होता है। दी तुर्का है, दी श्वाइस है, दी यूएसआ है, दी नीदरलैंडे है। स्लोकी हाँ दी, स्लोकी हाँ दी नीदरलैंडे है, और दी स्लोकी दी स्लोवाकी स्लोवाकाई, जिसको दी स्लोवेकिया, जिसको चेकोस्लोवाकिया, दी स्लोवाकिया जिसको बोलते हैं, स्लोवाकाई, दी स्लोवाकाई। ईरान भी वो है, दी ईरान। ज्यादा नहीं है वो कंट्रीज। स्वीडन भी मेरे पास था सर, स्वीडन। बाकी सारे कंट्रीज ऑन आर्टिकल है। ठीक है सर। कुछ कंट्रीज है जो आर्टिकल है। ठीक है, फिर ये आपको आई आई होप के वो हुआ होगा। सही है। इन, अच्छा, इसके बाद beliebte Reiseziele, favorite destinations, wie fährt wohin, wer fährt wohin, कौन कहाँ जाता है। ergänzen Sie die Fehlerpropositionen, arbeiten Sie zweit। अच्छा, die Deutsche fahren gern nach, क्या हो जाएगा? उस्तराइश। जी। अब क्या होगा स्पानियन में, क्या नाख होगा? नाक स्पानियन। अब ये देखो कितना डिफिकल्ट हो गया मेरे लिए। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ। चलो मैं नहीं लिखता, आप लोग खुद नोट नोट करें। क्या हो जाएगा? दी नाख स्पानियन, स्पानियन नाक स्पानिश। नाख इटालियन, नाख नाख स्पानियन, नाख इटालियन। यहाँ पे क्या आएगा? इन दी इंडिया हाँ, इंडिया इन दी डॉइचे फारन, इन दी नीदरलैंडे, डॉइचे फारन, यहाँ पे क्या आएगा? इन दी तुर्काई इन दी तुर्काई। हाँ, क्योंकि इन हमने बोला था जब वो हिन हो तो इन क्या हो जाता है? अकुजाटिव होता है, और अकुजाटिव में हमें पता है कि दी ही रहता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं ये सेकंड वाले पे। दी श्वाइसा फारन ज्ञान, दी ऑफ दी इंजल, ये कैनन किर्श कना किनारेशन कनारिशन सर इंजल। ऑफ नहीं ऑफ आएगा सर? हाँ, ऑफ आएगा यहाँ, ऑफ ऑफ द इंजल, दी श्वाइसा फारन ऑफ द कनारिशन इंजल। ये क्या होगा? नाख नाख, नाख सिप्रन, सिप्रन उसको कहते हैं साइप्रस को, नाख सिप्रन, नाख नाख इंग्लैंड, इंग्लैंड। लास्ट, इन दी इन यूएसए, दी इन दी यूएसए, इन दी यूएसए। यूएसए। हाँ, अच्छा, दी ओस्टराइशर fahren gern नाख कोराइटेड क्रो क्रोस क्रोशियन 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 नाख क्रोशिया जिसको बोलते हैं, करवासियन, करवासियन बोलते हैं इसको, करवासियन है, करवासियन है, करवासियन, हाँ, क्रोशिया, नाख क्रोआसियन, नाख डॉइचलैंड नाख डॉइचलैंड, ये वाला इन दी सॉइश इन दी श्वाइस, श्वाइस इन दी श्वाइस, इन दी श्वाइस। ठीक है। अच्छा, am liebsten aber manchen die Deutschen, die Österreicher und die Schweizer urlauben in ihren Ländern, अपने कंट्रीज में, अपने कंट्रीज में। und die Schweizer urlauben Urlaub in ihren Ländern। अब ये मुझे बताइए, इन इगन क्यों हो गया? सर ये लैंडर्न जो है ना प्लूरल है, देन आ रहा है तो इस वजह से ईगन हो रहा है। हाँ, क्योंकि ये वो है, डाटिव है। डाटिव है ना। ये बड़ा मसला कर रहा है। अच्छा,
हमने क्या बोला था? इन 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 अगर 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 वो हिन है, इन मतलब कहीं जा रहा है, तो वो अकुजाटिव होगा। जब वो पोजीशन बता रहा होगा, इन मतलब कहाँ पे वो, तो वो डाटिव होगा। इन, क्योंकि ये पोजीशन बता रहा है कि कहाँ पे वो करते हैं, अपनी छुट्टियां मनाते हैं। तो इन ईगन लैंडन, ये प्लूरल है। जी प्लूरल में डाटिव में हमें पता है वो क्या हो जाता है, देन हो जाता है, दी देन हो जाता है, और आखिर में एक एन लगता है। लैंडा, लैंडा मतलब कंट्रीज, अपनी कंट्रीज में लैंडन। ठीक है, ये डाटिव है क्योंकि इन ईगन लैंडन। ठीक है। सर ये जो एन लगाते हैं ये हर हर प्लूरल के साथ लगाना है या बस ये मेरे ख्याल में ज्यादातर के साथ लगता है, कुछ में नहीं लगता। जैसे कल हमने एक देखा था, वो क्या था? ऑटोस ऑटोस था आठोस। सर। आठोजन नहीं होगा ना, वो आठोज होगा। ठीक है। ठीक लैंडन, जैसे इसमें ठीक है। फिर इसको मैं, एक तो मैंने कोई दिया है आपको आज हाउस ऑफ काबा? नहीं दिया अभी तक। यहाँ पे देखते हैं कि क्या हाउस ऑफ काबा हो। चैप्टर के एंड में ये हमने कर लिया था। ये कहाँ तक हमने किया? ये वाला करना था ना। Schreiben Sie Sätze, achten Sie auf den Satzbau und die Konjunktionen wollen। अच्छा, ये आपने क्या करना है? ये कंजुगेशन वोलन आपने यूज करना है। वो तो बताया ही नहीं हमने। वो वोलन यहाँ पे डिस्कस हुआ था कहीं पे? नहीं सर, ये नहीं हुआ। सर हमने एक सेंटेंस में पढ़ा था बस। एक सेंटेंस में हमने पढ़ा था, हाँ। सर ये 20 पर है स्ट्रक्चर वॉलन। हमने 20 तक नहीं। ये फिर हम पढ़ेंगे। ये मैं जब आपको पढ़ाऊंगा। चलो इसको छोड़ देते, ये वाला ऑफ का हुआ। जब हम इसको पढ़ेंगे फिर इस पे आएंगे। अच्छा, ये वो वाला था। अ, ये हमने किया था, ये किया था, ये किया था। ये वोलन वाला हम करेंगे इसको जब मैं कराऊंगा। अच्छा, ये आप करें। ergänzen Sie die Monate, alle Monate mit einem ए। जिसमें ए आता हो वो मोनाटे आप लिखेंगे, जिसमें एल आता हो वो मोनाटे लिखेंगे, जिसमें एम आता हो वो मोनाटे आप लिखेंगे। ergänzen Sie die Fehler Jahreszeiten। ये कुछ दिए हुए विंटर समर, बाकी दो आप लिखेंगे उसके। अच्छा, एस इज काल्ट तो क्या है? दी कैल्टे, वो नाउन लिखना है उसका। ठीक है, वो हम लेसन में कर चुके हैं। जैसे एस इस्ट वार्म तो क्या होगा? दी वार्म वेर में था ना। ergänzen Sie die Verben in der richtigen Form। Habt ihr schon Plan für den Sommer? या वर्ब सही वो यूज करें। ठीक है, इसमें ज्यादा वोलन है, आप देख ले, अगर कर सके तो ठीक है, वरना फिर बाद में करेंगे। ये कन्वर्सेशन है। वैसे वोलन वही है, क्या कहते हैं उसे, वांट, मतलब एक आपकी एक इंटेंशन, आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा, इंटेंशन तो ये वो, आपने कहा था डिजायर सर, डिजायर हाँ इंटेंशन हाँ, डिजायर या इंटेंशन। जैसे वांट। आप कहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं इधर जाऊंगा, तो इंग्लिश में भी तो विल ही होता है ना, कि मैं करूंगा, आई हिज विल। विल। हाँ, हाँ, लेकिन वो सर इस तरह वर्ब के तरह यूज नहीं होता है, वो बोलते हैं उसका विल है, हिज विल, हाँ, दिस इज हिज यहाँ विल। पे इंटेंशन बताता है कि मैं ये करूंगा, मैं ये मतलब वो करूंगा। वोलन मॉडल वर्ब है, वोलन भी जी इस तरह मॉडल। खैर उस पे आएंगे फिर। अच्छा, ये वाला कर ले। ये जो आप लिखेंगे नाख इन ओडा आउफ, कि कहाँ पे नाख आएगा, कहाँ पे इन आएगा, कहाँ पे आउफ आएगा। ठीक है, ये वाला कर ले। विवादी बोला, विवादी बोला। चले फिलहाल आप ये कर ले, फिर बाकी देखें। ये अख्त, ये जेक्स, जेक्स और अख्त कर ले आप। ठीक है। जी सर। बाकी पीछे जीबन छोड़ दो, जीबन छोड़ देना सर। जीबन, हाँ फिलहाल वो हम एक दफा वो वोलन वाला स्ट्रक्चर कर पढ़ ले। फाइव कर ले, फुल्फ फुल्फ नहीं करें। जीबन, जीबन में ज्यादातर वो वोलन यूज हो रहा है मेरे ख्याल में। नहीं सर, दूसरे वर्ड्स भी है, सिर्फ एक दो वोलन है। अच्छा, तीन, तीन वोलन। तीन वोलन है, हाँ। चलिए अब ट्राई कर ले, अगर हो गया तो ठीक है फिर। वैसे वोलन का स्ट्रक्चर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। जी सर। चले ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैंने क्या बोला था कल? 10 reicht für heute। Es reicht für heute। और जो heute सोच das के reicht। Es reicht für heute। Es सर reicht for heute das reicht, für heute, das reicht। हाँ, für heute, das reicht। es reicht। Wir sehen uns morgen, auf Wiedersehen। हाँ, gut। Für heute, es reicht। Ja, es reicht für heute। It। Es reicht für heute। Wir sehen uns morgen।
Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. Bis bald. Bis bald, bis morgen. Bis morgen.